Okay, so for all of those who have joined now, after the monastery, I have come down. I have taken my darshan of Muktinath temple already, right? So you see, this is the Muktinath temple, and Muktinath temple is surrounded by this 108 water funnels, right? And this is considered as holy. People take shower in this thing. I did not had a good health, so I did not do it. You can see how these guys are taking the shower from this water. And the Buddhist Hindus also take the water home, to fill it, collecting water from each funnel over there. So, like as I said, this Muktinath Kshetra is considered very auspicious, very holy, and the land over here, the water, is considered very auspicious, and it provides you with the moksha. So finally, after all, the main motto of this life, right, is to get moksha. Whatever you are doing, right, down the line, whether you are aware of it or not, whether you are into spiritualism or not, finally it matters that you attain moksha or not, because it has been many, cycle of birth and death into many living, creatures. Finally, you have got this human body, and there has to be an end to it, right? So this temple or this place is bestowed with this blessing that whoever comes and comes in contact with this holy water, this holy land, will be eligible for moksha. This was the boon that I guess Brahmadev had given. I'm not exactly sure about this story, because very rarely people know about the story of this temple. Anywhere in the internet also you can't find, right? So, but this is a very ancient temple. It's not like of a recent time, and this area comprises of especially, you see, this is this temple, and this beautiful white and artistic design. This is the temple periphery. Inside, obviously the cameras are not allowed, so I'm outside. So this temple is located in the Muktinath Kshetra, near the Kali Gandaki river, which flows in Nepal. And the river is again very special, because the water that flows in the river is of a black color, right? It looks very blackish. So even I was astounded to look. For the first time I saw Kali Gandaki river in my life. So, and Kali Gandaki river has shaligrams. So those who are the कृष्ण भक्त और द राम भक्त वैष्णव संप्रदाय के जितने भी लोग हैं, उनको पता होता है शालिग्राम का इम्पोर्टेंस क्या है. एंड दिस रिवर which flows and looks like it is very black, very aggressive, just as the names it goes, Kali, right? So you get the black colored stone, shaligram, which is considered the live, embodiment of Lord Vishnu. So Lord Vishnu was given this shrap by, there was a demon called Jalandhar. Jalandhar was the son of Lord Shiva as per mythology, but later on he grew so much, turbulent, violent and all, that
nobody was able to control him, right? And that point of time, his wife, जालंधर की जो भी पत्नी थी, she had this boon कि जब तक उसका सतीत्व रहेगा, जब तक she is dedicated for her husband, nobody can on this universe can kill her husband, So what Vishnu did was that Vishnu ने छल किया, वो उसके हस्बैंड के रूप में चला गया उसके पास, एंड उसकी वजह से she could not identify, and because of that उसका सतीत्व का भंग हो गया. Later on Jalandhar got killed. So when the wife found out that Vishnu had done the chal to her, just to kill his husband, so she gave the shrap that Vishnu will have to take birth on earth in 3 forms. One is in a form of stone, which is Shaligram, which is available in this river bank, exactly the way Ma Narmada in MP, Madhya Pradesh, carries शिवलिंगम, नर्मदेश्वर महादेव जिसको बोलते हैं. तो जैसे माँ नर्मदा के अंदर का बहुत सारे पत्थर शिवलिंग होता है, वैसे ही काली गंडकी रिवर के अंदर के जो पत्थर होते हैं वो शालिग्राम में कन्वर्ट हो जाता है. साइंस डज नॉट हैव any explanation or a theory to this, that how come a river can convert a stone into a Shivalingam, both in shape and size, and same way this river is converting the stone into Shaligram, right? Which is, तो उनको 3 श्राप मिला था विष्णु को कि उनको 3 फॉर्म में जो है ना धरती पे पैदा होना पड़ेगा. So one was in a form of stone, another one was in a form of a peepal tree, right? So you can see here, ये जो trees है ये पीपल है, थोड़े लंबे टाइप की पीपल है, ये चौड़े टाइप के नहीं है पर है ये पीपल ही है, राइट? तो एक था स्टोन शालिग्राम, दूसरा पीपल ट्री, एंड तीसरा एक झाड़ पौधा के रूप में, एंड दैट वाज तुलसी, राइट? सो विष्णु ने वो श्राप स्वीकार किया क्योंकि छल तो उसने किया ही था, राइट? And that way how Vishnu started being worshipped in the form of Shaligram. No Ruchi, it's not a sound of a river, dear. You can see यहाँ पे 108 आपको धारा है जो बह रहा है, ठीक है? तो ये इसका आवाज़ है आपको. It's not any river. रिवर यहाँ से थोड़ा नीचे मिलेगा, उतना ऊपर में रिवर नहीं है, बट यहाँ पे जो 108 आपको जो धाराएं दिख रहा है इसके आवाज़ है. और ये 12 महीने ऐसे फ्लो होते रहता है. विंटर्स में स्नोफॉल में थोड़ा जम जाता होगा स्नो की वजह से, नहीं तो यहाँ पे होता है. सो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली हिंदू एंड बुद्धिस्ट, विजिट दिस प्लेस. इट्स अ वेरी हाईली रिलीजियस प्लेस. हिंदुओं के लिए तो है ही, बुद्धिस्ट के लिए भी है. सो लाइक टेंपल में भी जब मैं गया तो हिंदू टेंपल है, बट जो आचार्य थे, जो पंडित थे, वो बुद्धिस्ट थे, राइट? सो दे टेक टर्न्स टू मैनेज द टेंपल अफेयर्स ऑल्सो. एंड यहाँ जैसे मैंने कहा यहाँ का पानी बहुत पवित्र कहा जाता है, तो मैंने भी थोड़ा भर लिया है, राइट? आई ऑल्सो हैव फिल्ड अप अ बॉटल ऑल दिस वाटर. तो ये है. एंड एक चीज़ आई लाइक टू कोट वेरी क्लियरली दैट टेम्पल जो इतना ज़्यादा पवित्र एंड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, नो डाउट शांति का अनुभूति होता है यहाँ पे आने पे. आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से ही हो रहा होगा, यू कैन, इफ दोज आर एनर्जी कॉन्शियस, आप इमेजिन कर सकते हैं एरिया का वाइब कितना ज़्यादा पीसफुल है, राइट? बट एनर्जी का जो टेंपल का जो एक्चुअल एनर्जी लेवल होना चाहिए था, जो ऑरा होना चाहिए था, वो वैसा मेरे को यहाँ पे मिला नहीं, राइट? इस जगह का, जैसे मैं लास्ट 1 or 2 years बिफोर कोविड में माउंटेन्स में केदारनाथ में भी गया था, बद्रीनाथ में भी गया था. सो सिमिलरली मेरे को केदारनाथ में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन मिला. कंपैरेटिवली बद्रीनाथ में थोड़े कम मिला, पर ऐसा नहीं कि नहीं मिला. केदारनाथ वाज समथिंग लाइक
डायरेक्ट शिव जी के साथ ही बैठे हैं, शिवलोक में ही बैठे हैं, वैसा वाला फीलिंग था। तो वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुक्तिनाथ क्षेत्र में ऐसे कुछ होगा, मैं थोड़ा बैठ के यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह कर लूँगा, बट ऐसा कुछ मेरे को यहाँ पे अनुभूति हुआ नहीं। एंड दिस हैपन्स इज़ दैट सी टेम्पल में भी क्या होता है ना कि वो एनर्जी को आपको फीड करके रखना पड़ता है, राइट। जैसे एक रिश्ते को चलाने के लिए आपको उसमें जद्दोजहद करते रहना पड़ता है, मेहनत करते, एफर्ट्स। तो मंदिर में भी एक बार प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जब आप डालते हो मूर्ति को, राइट, तो आपको क्या है कि उसको टाइम टू टाइम पूजा, मंत्रोच्चारण, हवन, यज्ञ, वो डेली बेसिस में करते रहना चाहिए। एंड ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग मेरे को लग रहा है, राइट। तो जो भी पुजारी वगैरह है उन्होंने ओवर द इयर्स वो चीज़ को नहीं किया है। तो यहाँ का जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा सटल फॉर्म में अवेलेबल है। ऐसा है नहीं कि आपको एकदम वाइब्रेंट फील होगा। लाइक धार्मिक क्षेत्रों में जैसे मैं गया हूँ, कामाख्या टेम्पल इज़ वेरी हाईली वाइब्रेंट, ओके। इवन इन कोलकाता there is Ma Kali temple, highly vibrant. For any Devi Bhakt, highly vibrant, right? Jagannath temple, highly vibrant places. Kedarnath, Mahakaleshwar, right? Highly vibrant. तो जहाँ पे आप एक नियम पूर्वक करते हैं और जहाँ पे वाकई में भगवान का वास होता है, राइट, वहाँ पे आपका एनर्जी लेवल बहुत बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो चीज़ यहाँ पे इस टेम्पल में मेरे को मिसिंग थोड़ा सा लगा, बट नेवरदलेस दैट डजंट मैटर, क्योंकि ऐसा जगह में आने को मिला, बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इतना हाई ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। यू नीड टू बी गुड इन हेल्थ, यू नीड टू बी गुड इन फाइनेंसेस। आने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो पॉसिबल हुआ मेरे लिए। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इनफ बाय द डिवाइन कि मेरे को यहाँ पे आने का मिला। Chaya is asking where is it located? Chaya, it's located in Nepal, right? And since morning I have been seeing like there are foreigners who come for trekking. Like you see these routes up, okay? These are for trekking routes, right? So foreigners they come for trekking. उनका कोई spiritual connection होता नहीं है। And Hindus and Buddhists के लिए बहुत ज़्यादा ये धार्मिक जगह है। This place is located in Nepal and in a district मुस्तांग है या जोमसो में, बट अपर मुस्तांग है शायद, ओके। सो दिस इज़ द प्लेस। तो जैसे शिव जी के जो धाम होते हैं ना, ज़्यादातर हायर ऑल्टीट्यूड्स में ही रहते हैं। तो अनदर फैक्ट आई विल टेल यू अबाउट दिस टेम्पल इज़ दैट दिस टेम्पल इज़ मुक्तिनाथ टेम्पल छाया, राइट। सो ये टेम्पल लॉर्ड विष्णु को समर्पित है, राइट। बट हाउ आई डिकोड इज़ दैट जहाँ भी जिस भी वर्ड में, जहाँ भी किसी भी टेम्पल में अगर नाथ वर्ड जुड़ गया, राइट, लाइक बद्रीनाथ, जगन्नाथ और इवन मुक्तिनाथ, तो जहाँ पे भी लाइक पशुपतिनाथ, ओके, जहाँ पे भी नाथ वाला वर्ड यूज़ किया जाता है, सो नाथ मीन्स सबका बाप, ओके, एवरीवन्स फादर, द ग्रेट ग्रैंड फादर सॉर्ट ऑफ, ओके। तो यहाँ पे भी इस मंदिर के आगे जैसे नाथ जुड़ा है, तो ये मंदिर सिर्फ विष्णु जी का नहीं हो सकता, ये शिव जी का भी मंदिर है, राइट। सो आप इस तरीके से समझ सकते हो, राइट। एंड जैसे जगन्नाथ टेम्पल भी मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो मैंने तो आजीवन सिर्फ शिव जी का ही पूजा किया, शिव जी का ही मंत्र जाप किया है। बट वहाँ जाने के बाद मेरे को पता चला अरे ये तो विष्णु जी का टेम्पल है, राइट। एंड वहाँ पे एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर थे उड़ीसा में टेम्पल में, तो उन्होंने कहा कि आप तो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हो आप तो। एंड ही डिड नॉट से बाय हार्ट, एक रीडिंग आता है वहाँ पे, जैसे हम लोग रीडिंग देते हैं आपको, वैसे ही वहाँ भी मैंने एक रीडिंग लिया था उनसे। उन्होंने बोला आप तो बहुत बड़े जगन्नाथ जी के भक्त हो। तो आई वॉज वंडरिंग यार साला मैंने जगन्नाथ जी का पूजा कब किया, मैं तो जानता भी नहीं हूँ मंदिर में एंटर करने से पहले कि किन का मंदिर है। एंड ऐसा रीडिंग में आ रहा है।
तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड और टफ सिचुएशन में गया था, एंड ऐसा रीडिंग आया तो आई वॉज फॉर हैप्पी, यू नो. सो आई हैव डिकोडेड थ्रू माई ओन रिसर्च कि जहाँ भी ये नाथ वर्ड आता है ना, इट मीन्स दैट गॉड इज़ वन, एंड स्पेशली इट इज़ डेडिकेटेड टू, चाहे कोई भी गॉड हो, उसमें शिव जी का भी यू नो वहाँ पे रहता है इम्पोर्टेंस. ओके, सो ये मंदिर का एक मंत्र भी है स्पेशल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुक्तिनाथाय. राइट, सो ये है. राइट, सो दैट वाज द यू नो टूर फॉर यू गाइज स्ट्रेट फ्रॉम द हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स. आप देख सकते हो आसमान कितना साफ़ है, नीला है. ज़िंदगी में कभी इतना खुले आसमान हम लोग को शहरों में देखने को नहीं मिलता है डेफिनेटली. एंड इवन अगर आप माउंटेन्स में भी जाओगे, हिल्स में भी जाओगे, तो अगर ज़्यादा कंजस्टेड हिल्स होगे, शिमला जैसे हिल्स में जाओगे आप, यू नो देहरादून में जाओगे, मसूरी में जाओगे, आपको नहीं मिलेगा ऐसा आसमान, क्योंकि यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है. यू नो टेरेन बहुत ज़्यादा टफ़ है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो यहाँ पे कम लोग आते हैं, तो जहाँ लोग कम आते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट हमेशा अच्छा होता है. एंड रुचि जैसे बोल रही, रात में लाइट जलती होगी, सुंदर लगता होगा. एग्जैक्टली राइट. तो कल रात में स्टार्स का कॉन्स्टेलेशन देख रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था. जो स्टार्स का कॉन्स्टेलेशन हम लोग शहरों में नीचे से दूर से देखते हैं, वो एकदम पास से दिखाई दे रहा था. राइट, द कॉन्स्टेलेशन सीम सो नियर कि ऐसा लग रहा था कि ये तो बस नज़दीक में ही है. राइट, तो वो चीज़ है. इवन चाँद भी बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत ज़्यादा यू नो पास में दिखाई दे रहा था. तो ऐसा आसमान मेरे को, अगर मैं बोलूँ क्लियर्स का, एक तो यहाँ मेरे को अनुभव हुआ, दूसरा केदारनाथ में डेफिनेटली. राइट, एंड भूटान, आई हैव ट्रैवल टू भूटान ऑल्सो. तो भूटान में भी मैं जब गया तो वहाँ पे भी ऐसे ही मेरे को क्लियर एकदम ब्लू स्काई. यू नो व्हेन वी वर बॉर्न इन लाइक 80s एंड 90s, तो हम लोग ऐसा आसमान शहरों में भी दिखाई देता था. पर अब क्या है ना कि पोल्यूशन एंड ऑल दो स्क्रैप्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसने इसको सबको ख़त्म करके रख दिया. राइट, रुचि को कबूतर पसंद आ रहा है, यू नो. सो वाइट कबूतर जो होते हैं, वाइट पिजन्स और एनी एनिमल्स विच इज़ प्योर वाइट इन कलर आर कंसिडर्ड वेरी होली. वाइट कलर का एलिफेंट हो, वाइट कलर का पिजन्स हो, वाइट कलर का क्रो हो, गोरे रंग के कौवे भी होते हैं, ठीक है, बट बहुत रेयर होते हैं. वाइट कलर के टाइगर्स हो, लायन हो, तो दोज आर ऑल कंसिडर्ड वेरी डिवाइन. तो मंदिर में ऐसा दिख जाता है पिजन्स. निशा, पानी कहाँ से आ रहा? पानी देखो निशा, आपने लेट ज्वाइन किया. पानी यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ना 108 यहाँ पे धाराएं दिख रहे हैं जो पानी बह रहा है, ये वहाँ से है. तो लोग क्या है ना कि इस धारा में नहाते हैं, यहाँ पे नहाने का भी जगह है. राइट, एंड इस पानी को भर के भी ले जाते हैं घर में. राइट, इट इज़ कंसिडर्ड वेरी होली ऑस्पिशियस. तो ये वही पानी का आवाज़ है. राइट, Shreya is asking which place is this. Shreya, this is Muktinath temple. It is located in Nepal, right, in high altitude. तो 3800 मीटर के हाई ऑल्टीट्यूड पे ये टेंपल है. एंड थोड़ा ऑक्सीजन लेवल भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है कभी कभी. तो राइट, ये मेरे को नहीं पता रुचि कहाँ मिलते हैं, बट रेयर है, मिलते ज़रूर हैं. ठीक है, आपने तो सफ़ेद टाइगर्स भी नहीं देखे होंगे, देखे हैं क्या आपने? सफ़ेद पोलर बियर्स देखे हैं, वो भी सफ़ेद होते हैं. सफ़ेद हाथी देखे हैं, मिलते हैं, रेयर होते हैं. ठीक है, सो दैट्स इट. इफ़ एनीबडी वांट्स टू नो एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क. मैं आप लोग को थोड़ा कोशिश करता हूँ, तो कहीं भी जाता हूँ मैं ऐसे धार्मिक जगहों पे, यू नो स्पिरिचुअल प्लेसेस में, आई हैव दिस रूटीन. मंदिर का 3 बार परिक्रमा कर लो, दर्शन कर लो, वही बेस्ट है. बाकी का जो ताम झाम है, यू नो प्रसाद वसाद, दुनियादारी, हवन यज्ञ, वो सब फूल बत्ती, ये सब मैं फालतू का चीज़ों में नहीं जाता हूँ. एंड आई ट्राई टू मेडिटेट ऑल्सो, बट जैसे मैंने कहा मंदिर का जो ऑरा है उतना मेरे को पावरफुल फील नहीं हुआ. तो
यहाँ पे मेडिटेशन करने को बना नहीं मेरे को, राइट, कुछ खास। बट हाँ, शांति बहुत ज़्यादा है मंदिर का, एंटायर प्रीमाइस में शांति बहुत ज़्यादा है। आपका दिमाग, यू नो, दिस इज द आउटसाइड व्यू। तो ये आपका मंदिर, अभी दरवाज़ा क्लोज भी हो चुका है, ठीक है। दिन में एक बार क्लोज होता है, अभी फिर से क्लोज हो गया होगा, राइट। तो अच्छा है कि मैं एटलीस्ट, क्योंकि कैमरा को यहाँ पे लेके जा सकता हूँ, क्योंकि दरवाज़ा बंद है, राइट। ये पुजारी हैं, ही इज़ अ बुद्धिस्ट, इज़ नॉट अ हिंदू पुजारी, बट लाइक आई सेड, इस टेम्पल में मिला जुला सब कोई जो है ना साथ में करते हैं। तो बुद्धिस्ट पुजारी इज़ लुकिंग आफ्टर दिस। एंड इस तरफ राइट साइड में अखंड जो हवन यज्ञ का जगह है, धूप वगैरह का वहाँ पे है, राइट। सो दिस इज़ द टेम्पल। तो टेम्पल का एक मंत्र भी लिखा हुआ, क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुक्तिनाथाय नारायणाय। थोड़ा मुश्किल है मंत्र, राइट। मैं भी फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुक्तिनाथाय नारायणाय। ओके, तो ये है अंदर। मैं आपको, और मूर्ति भी सरप्राइजिंगली एक टिपिकल विष्णु जी का मूर्ति जैसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो मूर्ति दिख रहा है वो एक बुद्धिस्ट मूर्ति जैसा है। उनके ऊपर नाग, जैसे शेषनाग का फन बना होता है, वो सब बना हुआ है, बट एक टिपिकल वो वाला जैसा लग नहीं रहा है आपको, ठीक है। तो ये है। नाउ आई थिंक आई विल गो फॉर अ ट्रैक। थोड़ा सा ट्रैक वैक करके लंच कर लेता हूँ। सुबह से यहाँ आना था तो मैंने कुछ खाया भी नहीं, राइट। एंड ये है आपको मंदिर, ओके। तो चारों तरफ का मैंने आप लोगों को दर्शन करवा दिया, राइट। फ्यूचर्स में मेरे को और भी जगह ट्रैवल करने का है, राइट। चार ज्योतिर्लिंग हो गया। लोग तो ऐसे नहाते हैं, लोग देखो दौड़ दौड़, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। आप ये गट्स नहीं दिखा सकते हो कि यहाँ पे आप खड़े होकर नहा लोगे, राइट। पानी इज़ लाइक फ्रीजिंग आइस कोल्ड। तो जितना भी बूंदे गिर जाए, दौड़ दौड़ के लोग नहा लेते हैं। मेरा अगर तबीयत सही होता तो मैं भी नहाता ज़रूर, बट बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम डेंगू, तो ज़्यादा का हीरोइज़म अच्छा नहीं होता, तो मैंने वो काम नहीं किया, राइट। नेक्स्ट टाइम में भी इफ़ आई कम विद बेटर गुड हेल्थ, तो शायद मैं भी नहाऊंगा, राइट। बट नेवरदलेस यहाँ के माटी में आने को मिला, यहाँ का पानी को स्पर्श करने को मिला, यू नो, दैट इज़ इटसेल्फ अ होली ग्रेस इन इटसेल्फ। नाउ नेक्स्ट ट्रिप, ऐसा ही हाई ऑल्टीट्यूड में एक बार कैलाश जाने का मन है, मानसरोवर ट्रैक, बट दैट इज़ अ वेरी वेरी आर्डियस ट्रैक। एटलीस्ट 30 दिन का तैयारी करना पड़ता है। हाँ रुचि, बैल की आवाज़ तो आप सुनोगे, मंदिर में बैल का आवाज़ तो नहीं सुनोगे तो क्या, ठीक है। तो राइट, सो 5 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ है मेरा अभी तक, बाकी का 7 करना है। एंड 52 शक्तिपीठ है। 52 शक्तिपीठ में आई डोंट नो, मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि शक्तिपीठ का काउंटिंग्स बहुत ज़्यादा होता है। पर ज्वाला देवी, नैना देवी, है ना, यहाँ जाने का मन है मेरे को, देखते हैं क्या होता है। तो ये जो पानी आ रहा है आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, देखो अपर स्ट्रीम एक रिवर आ रहा है, देख ये आपका हुआ माउंटेन ऊपर का, राइट। सर्दियों में यहाँ पे पूरा स्नोफॉल हो जाएगा, दिस टेम्पल विल बी कवर्ड बाय स्नो। तो यहाँ जो ऊपर में आपको यहाँ पे पानी दिख रहा होगा, ये वाटर स्ट्रीम, राइट, ये वाला, ये वाटर स्ट्रीम आपको नीचे फ्लो होके यहाँ पे आ जाता है, राइट। हम लोग इसी पानी को लेके चल रहे हैं, ओके। So those who have joined, thanks for joining. Those who did not join, a recorded version I'll be uploading in the channel, वहाँ से देख लेंगे, right? So God bless you all, love you all, okay, take care of yourself, okay, yeah, bye, and happy Dashera, happy Navratri, happy holidays to everyone, okay. तो ये सुनना है, ये आवाज़ थोड़ी देर और मैं सुना देता हूँ लोगों को।
मैं बोलना भी बंद कर दूंगा। बहुत ज़्यादा पीसफुल है, राइट। आवाज़ बहुत ज़्यादा पीसफुल है। जो ट्विन फ्लेम्स हैं, दोज हु हैव जॉइंड एज अ ट्विन फ्लेम, राइट, तो उनके लिए भी क्या होता है ना कि जब भी आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़े, राइट, तो और आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि आप किसी वाटर बॉडीज़ के पास चले जाओ, राइट। जैसे चलता हुआ पानी है, फ्लोइंग रिवर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, राइट। नहीं तो स्टैगनेंट वाटर भी है, लेक है, तालाब है, समंदर है, वहाँ भी आप चले जाओ। आप देखो जब आप घर वापस आओगे मोर देन 50% तो आप हील हो चुके होगे, राइट। सो आफ्टर दैट इट डिपेंड्स कि आप कैसे लोगों से डील करते हो, कैसे लोगों के कांटेक्ट में आते हो, राइट। तो वाटर बॉडीज़ ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको टाइम टू टाइम मौका मिले नेचुरल वाटर बॉडीज़ के पास चले जाना है, राइट, तो आपको हीलिंग होता है। रुचि wants me to ring the bell, okay. इस तरफ का बेल का आवाज़ बढ़िया नहीं था, शायद दूसरी तरफ होगा। नेवरदलेस आपने बहुत ज़्यादा सुन लिया, बेल का आवाज़ कितना सुनिएगा, राइट। तो लेट्स कॉल इट अ डे, ओके। सो बाय बाय गाइस, गॉड ब्लेस।